Hello everyone, I am Ramvir from Maples Academy. Today I am discussing here class 11 Humanity, History and theme 10 Displacing Indigenous People. So what were the main impact in 16th century or in some countries what were the main discoveries of the world were had by the Europeans. So first of all we discuss about the European imperialism. There are many countries who are located in Europe continent. Everyone wanted that more and more territory, so they will started many more territory to discover more territory. For example, Spanish, Portuguese and Dutch people spread all the world to discover new territories. For example, Vasco da Gama wanted to discover India, so he reached in India in 1498 and then discovered. Same story are implied to the countries, for example, such as Australia and such as USA. So, what is the story of USA, America? First of all, European imperialism. In this system, European want more and more territories and they wanted to trade, discover new lands, and after some time they set up there and establish their industries, also their colony and rule to local people. The story of the North American continent in 1492, that we know that it was discovered by the Columbus, Christopher Columbus. Christopher Columbus, a person who wanted to discover India, but suddenly he go to the area where he don't know about the India. तो उसका जो पहुंचा था, at that time there is no कंपास नहीं होते थे. Then he discovered to America, a vast area, and then it has the people which is set up there for 30,000 years. उसने जब इस ज़मीन को देखा, वो बहुत उपजाऊ नदी, पहाड़ी क्षेत्र, अपलेशियन, रॉकी माउंटेन्स एंड डेजर्ट. So he was very affected, and then he meet to the native people of the America. Then native in America. Native actually these were the people who set up to there. बहुत पहले से रहने वाले लोग थे, लगभग 30,000 साल पहले से लगभग एशिया और दूसरे जो मैक्सिकन कंट्री हैं उनसे पहुंचने वाले लोग थे, जो अमेरिका में मूल रूप से रह रहे थे. एंड बोथ द community means European and native people, they were not doing good for their पर्पजेज और फॉर देयर डेवलपमेंट. तो जो ये लोग यूरोपियन लोग थे, उन्होंने नेटिव पीपल को परेशान करना शुरू कर दिया. दे कैप्चर देयर लैंड, दे गिव नॉट राइट्स टू देम, एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज, यूज देम एज अ बॉन्डेड लेबर एंड मैनी मोर, इम्पोज ऑल्सो टैक्स टू देम. नेक्स्ट, द गोल्ड रश इन 1840. Gold was a main minerals found in the American continent, Mexican continent, and then they wanted total rule on the continent. So after some time they give some suggestions for the empowerment of the native people. It was ended in 1840, something 1840s, and gold rush was started for the power for the Europeans people. Then growth of industries in America continent. If we discuss, इसकी 5 महान झीलें हैं, सुपीरियर, और उसी के आसपास लोगों ने डेट्रॉयट, शिकागो, न्यूयॉर्क, न्यू इंग्लैंड, ऑल दीज एरिया में क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री वहाँ पर लगाने शुरू कर दी. और इंडस्ट्री लगाने के साथ साथ क्या होता है, उन्होंने सेटअप शुरू कर दिया, अपनी इंडस्ट्री को पूरा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंजेस में आना शुरू हो गया. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ब्लैक एंड वाइट पॉलिसी यूरोप में चल रही थी, तो उसी का नतीजा ये होता है अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी ऐसा हुआ कि ये नीति, ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई थी. एंड ब्रिटिश जो थे अपने आप को मानते थे वाइट्स, दे वर सुपीरियर पर्सन, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो ब्लैक लोग थे उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया. दे हैव नॉट गिव एनी राइट टू देम. तो उसका क्या फाइट होने लगी, दे डिमांड मोर एंड मोर राइट्स. बट आफ्टर सम टाइम्स इन
19 सेंचुरी, जैसे 20वीं सदी की 19th सेंचुरी ख़त्म होती है और लगभग 1910 के आसपास लोगों को कुछ राइट्स देने शुरू हो गए थे और इससे ब्लैक्स जो हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में जोड़ दिया जाने लगा था. दे पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड दे गिव सम राइट्स ऑल्सो, फ्रीडम ऑल्सो. देन ऑस्ट्रेलिया, सेम स्टोरी इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में भी लगभग 30,000 ईयर्स से लोग सेटअप मतलब बस रहे थे. दे कम फ्रॉम द एशिया कॉन्टिनेंट और इधर से पहुंचने वाले लोग जो थे ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड इन लेटर एंड इट वाज जेम्स कुक एंड मैनी मोर पीपल. तस्मान ऑल्सो contribute to the न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया. इट वाज अ वास्ट लैंड एंड द यू नो दैट इट इज़ अ वास्ट कॉन्टिनेंट. तो वहाँ की पॉपुलेशन आज भी बहुत कम दिखाई देती है बिकॉज वो बहुत देर में, बहुत लेट उसको डिस्कवर किया गया था. इसी को जो है अंग्रेज़ों ने बड़े स्तर पे अपना एक कॉलोनी बना ली और आफ्टर समटाइम्स वहाँ पर नेटिव लोगों को कोई राइट्स नहीं दिया, सेम एज दे डिड इन द USA. सो they wanted more majority and more imperialism, more set up colonies for their survival. Then the wind of change. After some times, gold rush also implemented in the Australia. Australia is a good producer of the gold in the world. एंड तो लोगों ने वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री बनाई. तो उससे क्या हुआ, उससे प्रॉब्लम यह आई कि जो नेटिव लोग थे उनको कोई राइट्स नहीं दिया गया था. वो एज ए बॉन्डेड लेबर ऐसे वर्क कर रहे थे. तो उसको दूर करने के लिए जो है एक सिस्टम बनाया गया. गवर्नमेंट ने उसको मुख्य धारा में जोड़ दिया लोगों को और नेटिव पीपल को भी राइट्स देने शुरू कर दिए. और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एक बहुत इट इज़ वेरी डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. और आज उसको जो है इस तरह की चीज़ें दी गई है. दिस इज द कॉन्टिनेंट विच इज़ नॉट सो मच पॉपुलेशन बट एरिया इज 3 times मल्टीप्लाई दैन इंडिया. एंड देखा जाए तो इंडिया के कॉन्टिनेंट से बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पर लोग आजकल बस रहे हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.